Bismillahirrahmanirrahim. Dear students and respected parents, Assalamu alaikum. Today we are going to start lesson number 2 of Unit 4 of Iqra Applied Grammar Book 3. Dear students, let's start the proceedings of the lesson with the feedback segment of the homework that was given to you by me yesterday. And your homework is exercise A. Look at the pictures and circle the correct words. आपने क्या करना था, आपने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना था जो कि प्रपोजिशन और प्लेस की थी विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर्स. तो आई हैव डन दिस एक्सरसाइज फॉर योर कन्वीनियंस. मैंने इसको मुकम्मल कर दिया है, करेक्ट ऑप्शंस को सर्कल कर दिया है फॉर योर फीडबैक. एंड आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज द सेम वे एज आई डिड. And if there is any mistake, inshallah ta'ala, that mistake will be corrected after this feedback. So let's start the feedback. The seat next to between him is vacant. तो यहाँ पिक्चर से quite obvious है कि ये ऑप्शन next to होगी. Second sentence, the lake is above in front of the mountains. तो as we know that कि जो lake है वो mountain के बिल्कुल सामने है, तो in front of the option is correct option. Sentence number 3 is the bird is above across from the building. So as you can clearly see that the bird is above the building, तो above की option को हमने circle कर दिया. The next sentence, the school is across from behind the park. तो जो school है वो basically across from the park है, तो हमने across from the park की option को circle कर दिया. Sentence number 5, the skulls are behind the tree. So these skulls are basically behind the tree. They are looking from behind the tree. तो जो behind की option है उसको हमने appropriately circle करना था. And the next sentence, the rabbit is above between the cats. तो rabbit जो है basically वो cats के दरमियान में है. I hope that you have done this exercise the same way. And the next part of your homework is exercise B. And your exercise B is fill in the blanks with the proper preposition of time in, on or at. आपने इन sentences को complete करना था while using the preposition of time. So let's look at the sentences and then I'll give you the feedback. The first sentence is, my grandfather was born in 1950s. And if you look at this sentence, चूंकि ये years के लिए यूज हुआ है तो preposition of time in जो है वो years के लिए यूज होती है. Sentence number 2, my son goes to bed at 10 o'clock. तो at 10 o'clock is basically 10 o'clock specific time है, तो उसके साथ हम at preposition को यूज करते हैं. Sentence number 3, we are going to have a picnic on Sunday. चूंकि ये days of the week है Sunday, that's why we use on preposition. Sentence number 4, he gets up early in the morning. तो parts of the day के लिए भी हम in preposition use करते हैं, तो in the morning हमारी option यहाँ पर होगी. Sentence number 5, I am going to meet my friend on 20th of May. जो dates होती हैं, जो डेट्स ऑफ द मंथ्स हैं उनके साथ हम ऑन प्रेपोजिशन को यूज करते हैं. दैट्स वाई हमने यहाँ पे ऑन प्रेपोजिशन को यूज किया. सेंटेंस नंबर 6, द टेलीफोन एंड द डोरबेल रैंग एट द सेम टाइम. एट जो है वो एक एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है. दैट्स वाई वी यूज एट प्रेपोजिशन. आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज द सेम वे एज आई डिड. एंड इफ देयर इज एनी मिस्टेक यू विल करेक्ट इट. Dear students, let's start the proceedings of the lesson number 2 with the next exercise activity, exercise C. And in this exercise, you have to match the sentences having preposition of movement with the suitable pictures. इस activity में आपने क्या करना है? You have to match the activity with the relevant pictures. आपने ये जो activity यहाँ पर बयान हो रही है, जैसे walk over the bridge, go back to school, get out of the class, move away from the fire, sit under the tree, look through the window, put your books into your bag, climb up the tree to get apples. And हमारे पास एक list of pictures भी है यहाँ पे.
आपने क्या करना है, यू हैव टू मैच द एक्टिविटी विद द रेलिवेंट पिक्चर व यूजिंग द प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट। क्योंकि इसमें प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट यूज हुई हैं, वो एक्टिविटीज में बयान की गई हैं इन सेंटेंसेस में। इन सेंटेंसेस को आपने उस एक्टिविटी की पिक्चर के साथ जोड़ना है। सो विल डू दिस एक्टिविटी टुगेदर। फ्रॉम दिस टाइम नाउ ऑन यू विल पॉज द वीडियो, you will complete this exercise, and then I'll come back and I'll give you the feedback regarding this activity. So your time starts right now. So dear students, it's time to give you the feedback of exercise C that was given to you by me. And in this exercise, as you already know that you have to match the activity with the relevant picture. आपने preposition of movement वाली जो activity थी उसको एक relevant picture के साथ मैच करना था। एंड दिस एक्सरसाइज हैज ऑलरेडी बीन डन बाय मी फॉर यू। ये मेरे लिए, ये पहले ही आपके लिए कर दी गई है। अब आपने रेलिवेंट एक्टिविटी को मैच करना है पिक्चर के साथ। सो जो पहला हमारा जो सेंटेंस था वो था वॉक ओवर द ब्रिज। तो अगर हम यहाँ पे पिक्चर्स देखिए तो ये एक पिक्चर है जिसके साथ इसको मैच करना था, दैट समवन इज वॉकिंग ओवर द ब्रिज। तो कोई ब्रिज के ऊपर से वॉक कर रहा है, तो ये हमारी ऑप्शन फर्स्ट सेंटेंस के लिए हमने इसको इसके साथ मैच किया। एंड सेकेंड हमारी जो हमारा सेंटेंस था, गो बैक टू स्कूल। सो एज यू क्लियरली सी दैट हमने इसको इस पिक्चर के साथ मैच किया है, एंड क्योंकि एक बच्चा स्कूल की तरफ जा रहा है। सेंटेंस नंबर 3, गेट आउट ऑफ द क्लास। इस पिक्चर को अगर आप देखेंगे, द टीचर इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू द स्टूडेंट टू गेट आउट ऑफ द क्लास, और बच्चा भी क्लास से बाहर की तरफ जा रहा है या उसकी शरारत की वजह से उसको कहा जा रहा है। सेंटेंस नंबर 4, मूव अवे फ्रॉम द फायर। अब अगर आप इस पिक्चर में देखेंगे तो यहाँ पे यू कैन क्लियरली सी द फायर, और फायर एंड समवन इज मूविंग अवे फ्रॉम द फायर। तो इस पिक्चर के साथ हमने इस सेंटेंस को मैच किया है। अब हम रिमेनिंग सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। हमारा सेंटेंस नंबर 5 है, सिट अंडर द ट्री। सो अगर आप इस पिक्चर को देखेंगे, दैट समवन इज सिटिंग अंडर द ट्री, तो हमने इसको इस पिक्चर के साथ मैच कर दिया है। सेंटेंस नंबर 6, लुक थ्रू द विंडो। एज यू कैन सी दैट दिस गर्ल इज लुकिंग थ्रू द विंडो, ये विंडो से देख रही है, तो हमने इस ऑप्शन के साथ इसको मैच कर दिया। सेंटेंस नंबर 7, पुट योर बुक्स इनटू योर बैग। आप अगर इस पिक्चर को देखेंगे, दैट दिस बॉय इज पुटिंग बुक्स इन हिज बैग, अब ये बैग में डाल रहा है, तो ये इसके लिए क्वाइट ऑब्वियस ऑप्शन थी। क्लाइंब अप द ट्री टू गेट एप्पल्स। तो यहाँ पे अगर आप पिक्चर देखेंगे तो एक बच्चा जो है वो ही इज क्लाइंबिंग अप द ट्री, तो ये इस पिक्चर के साथ इसको मैच कर दिया है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू रिगार्डिंग दिस एक्टिविटी, एंड आई होप दैट यू हैव डन दिस एक्सरसाइज द सेम वे एज आई डिड। Now it's time to move on to the homework segment for today's lesson. So dear students, your homework for today is extended practice exercise A. Look at the pictures and answer the following questions. आपने इन पिक्चर्स को देखना है और इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। And if you look at the questions, I'll read out the questions first and then I'll explain the whole activity. हमारे जो questions हैं, where are the roses? Where is the TV? Where is the bench? Where is the smoke? Where is the stationery shop? Where is the statue or guard? Where is the hospital? ये हमारी where is the hospital, where is the statue and guard. अगर आप पिक्चर्स देखेंगे तो यहाँ पे हर उस चीज़ की एक प्लेसमेंट होगी, वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे होगा जिसको आपने आंसर करना है। इफ़ यू लुक एट द क्वेश्चन वर्ड, वेयर का क्वेश्चन वर्ड जहाँ भी आता है, दैट क्वेश्चन वर्ड इज बेसिकली यूज फॉर द प्लेस। ये प्लेसेस के लिए इसको यूज किया जाता है। अब आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को आंसर करना है। जिस स्ट्रक्चर में क्वेश्चन है उसी स्ट्रक्चर में आप आंसर करेंगे। सपोज दैट आपसे पूछा गया वे आर द रोजेज, तो आपने कहना है द रोजेज आर बिटवीन द ट्रीज। जो रोजेज हैं वो ट्रीज के इन बिटवीन है। तो आपके लिए वही प्रेपोजिशन ऑफ प्लेसेस आपने यूज करनी है जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं, और उनको यूज करते हुए आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे। आई होप दैट देयर विल बी नो डिफिकल्टी फॉर यू रिगार्डिंग सॉल्विंग दिस एक्सरसाइज। और अगर कहीं प्लेसमेंट में आपको कंफ्यूजन होगी, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द पिक्चर्स। आप पिक्चर से देखेंगे कि यहाँ कौन सी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस अप्रोप्रिएटली यूज हो रही है। सो डियर स्टूडेंट्स, I hope that there will be no difficulty for you.
मुश्किल होनी नहीं चाहिए. एंड इंशाल्लाह ताला इफ देयर इज एनी डिफिकल्टी, दैट डिफिकल्टी विल बी रिजॉल्व बाय मी tomorrow in the feedback segment of this homework. So it's time to say Allah Hafiz. Assalamu alaikum.